Hello students, I hope you all are doing great. I'm Monica Elawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Now we are doing this practice MCQs. Unit 1 we have already completed. Two videos are already available on the channel and this is the last video for MCQs for 2026 PGDRPC entrance exam of IGNOU. Okay. So in this video I have included like all the units. Okay, so some parts from all the units I have included and made some MCQs for you. So this is going to be the last video now for PGDRPC entrance 2026 practice. Okay, so let's start. Okay, so first question is, which among the following are the objective of psychological research? So this we have done. Psychological research के objectives क्या क्या होते हैं? To learn and understand human behavior, okay, to measure, describe, categorize human behavior, right, and even predict. Okay, so the answer is both A and B. Let's see next. Which among the following are the characteristics of psychological research? Now, what should be the characteristic? Research is replicable. Yes, if it will be replicable, then only we will find that okay, this research is reliable, valid, है ना? It requires skills of writing and report making. Yes, formal writing skills होने चाहिए. It is based on empirical evidence. Yes, based on observation and experiments. अब हमारे evidence जो हैं, they should be based on experiments and observation and not the vague kind of evidences or ideas, opinions. Okay, so all of the above. Then, which among the following should be considered while selecting a research problem? Now, very important is research problem when we have to do some research, right? The very first task is what is our research problem? So, what should we keep in mind? What should we consider while selecting a research problem? The options are: controversial subject should not be studied by average researcher. Okay, so yeah, this is right. We should not study controversial subjects if we are like average or new researcher. Then too narrow and too vague problem should be avoided. Yes, so both A and B are correct. Okay, then in a research, the researcher is not able to control the extraneous variables. Okay, some researcher is doing a research where he or she is not able to control the extraneous variable. Okay, so this lesser degree of control can make it difficult to draw cause effect conclusion behavior, develop predictions of behavior, consider alternative theoretical explanation of behavior, या develop descriptions of behavior. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जो रिसर्च मेथड्स की क्लास की थी उसमें what we studied about extraneous variables, that we should control these variables, otherwise what will happen, they will destroy the relationship of iv and dv, independent variable and dependent variable की ये relationship को ये hamper कर सकते हैं, destroy कर सकते हैं. That's why we should control them. Okay, and what is independent variable? It is cause. Dependent variable is effect. Okay, so cause effect relationship ko they will impact. That's the only question this is asking. The researcher is not able to control extraneous variable. Okay, extraneous variable का control यहाँ fail हो गया है. Then this lesser degree of control, so what will it make difficult? Then draw cause effect conclusion behavior. Okay, so it will impact the cause effect relationship. So this is the right answer. Okay, which of the following variable is recorded by the experimenter? Experimenter कौन सा variable record करते हैं? Dependent, extraneous, independent or none of the above. So basically the variable which is under observation and recorded is dependent variable. Okay, we observe also and record also this variable. Okay, let's move on to another question now.
Okay, SOR model represents different categories of what? If you remember, we did this. SOR is for stimuli, organism, and response. Okay, so they were the type of variables. है ना? So this the SOR model represent categories of sampling, variable, hypothesis, or none of this. So answer is variables. Which among the following is correct about independent variable? ये I told you during the class also many a times, and this is very important also. So what is true about the independent variable? It is manipulated by the experimenter. It is observed and recorded by the experimenter. It depends on the behavior of the participant, or none of the above. It is the one which the experimenter manipulate. Okay, so this is correct. Observed and recorded ka we just saw in the previous question. It is uh, dependent variable, है ना? We observe and record dependent variable, and we manipulate independent variable. Okay. Okay, which among the following techniques could be used to control extraneous variables? Okay, as we know that we should control extraneous variables so they do not impact the relationship of IV and DV. So what techniques we can follow if we want to control extraneous variables? Constancy, elimination, counterbalancing, all of the above. Constancy means that elimination is like completely removing. Okay, constancy, if we are not able to remove them, then let us keep them at the keep them same across all the conditions. Okay, so that's how we can control them. Okay, and or otherwise we can counterbalance them. So all the techniques we can use to control the extraneous variable. So all of the above is true. Up है a technique in which each member of the population has an equal and independent chance of being selected is known as. ओके, एक पॉपुलेशन है हमारे पास, इसमें जितने भी लोग हैं, अगर हमको सिलेक्शन करना है, ओके, एंड हर किसी का उतना ही चांस है सिलेक्ट होने का जितना भी किसी और का है, ठीक है, यानी एवरी वन हैज इक्वल चांस एंड इंडिपेंड द चांस ऑफ वन पर्सन इज इंडिपेंडेंट टू द चांस ऑफ अनदर पर्सन to be selected. Okay, so what it is it counterbalancing, elimination, or randomization, or balancing? So this process is called randomization. Okay, this is like randomly, if from a population we have to select, suppose 10 people we have to select from this population, so and total there are 1000 people, then everyone in the 1000 they have equal chance to be selected, and their chances are also independent of each other. So this process is called randomization. And when we do random selection, if we are doing randomly, we are selecting, then this technique is used in which sampling technique? Probability. Okay, random selection happens in probability sampling, and non probability sampling में random selection नहीं होता है. Okay, non random selection in non probability sampling. Next question. A variable which is not manipulated but only measured by the experimenter. This also we did in the class. Active variable, control variable, type E, or attribute. The answer is attribute variable. इसको हम manipulate नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको measure कर सकते हैं. ठीक है, so this is attribute variable. Let's see next question. Okay, which of the following should be considered while formulating a hypothesis? Okay, hypothesis हम statement बनाते हैं जिसको हम test करते हैं basically अपने experiment में और अपनी research में. Okay, so which of the following should be considered? अब हमें hypothesis बनाना है, वो statement बनानी है hypothesis की, तो what should we keep in mind? What all should we include? Expect expected relationship between the variables, operational definition of variables, hypothesis should be formulated after reviewing the literature, or all of the above. अब hypothesis
क्या करता है हाइपोथेसिस, हमारे जो वेरिएबल हम लेते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को बताता है, ओके, एंड हम उसमें बताते हैं कि ओके वेदर इट विल बी लाइक कोरिलेटेड और वेदर इट विल हैव सम इफेक्ट ऑन between the variable, if one if we change one variable there will be effect on the another variable, है ना? सो रिलेशनशिप बताता है कि with increase in this particular variable the another variable will increase or decrease, इस तरीके से क्या उनका के बीच का रिलेशनशिप रहने वाला है। अगर ये दो वेरिएबल्स हैं तो वो क्लियरली एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जो है वो उसमें हम लिखते हैं, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, yes we have to define the variables in terms of operational definition, ये हम ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इफ we have operational definition of variables then only we will be able to test the hypothesis, then only it is scientific in nature, otherwise it is just an abstract concept, right? So this is also correct। then है hypothesis should be formulated after reviewing the literature, so this is also correct। hypothesis का formation हमारा बाद में होता है, पहले हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम जो लिटरेचर है, जो प्रीवियस स्टडीज एंड रिसर्चेज हुई हैं, we study them, we go through them, okay। so hypothesis should be formulated after review of literature only, so these all are correct, so the answer is all of the above, okay। let's move on to another question। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेशनल डेफिनेशन, सो व्हाट इज एन ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये हमने वेरिएबल्स की क्लास में किया था कि जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टैंडर्ड स्केल से मेजर करते हैं, देन जो हमारी स्कोरिंग आती है, जो हमारा एंटिटी निकल के आती है, दैट इज अ वेरिएबल, है ना? एंड ये जो मेथड हमने लगाया इसको इस पे अप्लाई किया जो क्वेश्चनेयर, दैट इज we are doing what we are doing with this method, we are operationally defining that abstract idea, okay। this is what we studied, if there is an abstract idea we apply some test, some standardized test on this, or okay, and then it becomes variable, so this process, this method is known as operational definition of variable if we are able to test it, okay। so यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, इंटेलिजेंस पहले तो देख लिया हमने कि इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इंटेलिजेंस इज व्हाट आईक्यू टेस्ट मेजर, intelligence is the ability to be smart, intelligence is knowledge of many subjects, intelligence is being clever, so if you see clearly being clever कि इंटेलिजेंस तो वो होती है जो बहुत क्लेवर होता है, दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, इज इट एन आइडिया और इज इट सम साइंटिफिक थिंग, दिस इज एन आइडिया ओनली, है ना? anybody can say that if someone is clever, anybody can say that okay this person is clever, this person is intelligent। अगर किसी को बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है तो उसको हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ओनली। अगर हम कह रहे हैं कि कोई स्मार्ट है तो दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, अगेन यहाँ पे हम इनमें कहीं पे भी इनको ना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना इनको मेजर कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं इंटेलिजेंस इज व्हाट आईक्यू टेस्ट मेजर, ठीक है, तो यहाँ पे आईक्यू टेस्ट के द्वारा हम इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एंड मेजर भी कर सकते हैं, तो ये हो गई इंटेलिजेंस की operational definition, okay। so whenever any variable is defined, like how we can observe and measure that variable, it gives it a operational definition, it becomes the operational definition of that variable, ठीक है। so intelligence यहाँ पे एक variable की तरह बन गया है एंड इसकी definition हो गई है intelligence is what IQ test measures, okay। यहाँ पे intelligence जो है इन तीन options में एक abstract idea की तरह है and we cannot measure it, okay। so I hope this is clear। let's move on to our next question। a hypothesis that predicts the relationship between two variables in a specific measurable way is called, okay। now hypothesis हमने बात की hypothesis के बारे में, what it is, we have to make a statement and we have to tell the expected relationship between the variables, right। so यहाँ पे अब it is saying a hypothesis that predicts the relationship between two variables in a specific measurable way, अगर वो prove करता है, predict करता है relationship को
इन अ मेजरेबल वे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इज इट अ नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, जनरल और डायरेक्शनलेस? इट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, और रिसर्च हाइपोथेसिस, एंड इट इज डिनोटेड बाय H1 like this. Then a hypothesis that states that there is no relationship between variables, ठीक है, वहां पे तो क्या था, ऑल्टरनेटिव पे तो रिलेशनशिप प्रिडिक्ट की गई थी, एंड यहाँ पे क्या है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? नल हाइपोथेसिस, ओके, एंड दिस इज हाउ वी राइट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 एरर व्हाइल टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस. ओके, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमारी एरर आने के चांसेस रहते हैं. सो टाइप 1 एरर होती है, एक होती है टाइप 2 एरर. सो व्हाट इज टाइप 1 एरर? We reject a true null hypothesis, accept a false null hypothesis, we correctly reject a false null hypothesis, या we correctly accept a true null hypothesis. So टाइप 1 की एरर में हम क्या करते हैं, हमारा जो नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस होता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर टाइप 1 एरर. एंड टाइप 2 एरर में क्या होता है? टाइप 2 एरर में हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. सो हियर इज फॉल्स नल हाइपोथेसिस, इसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी टाइप 2 की एरर आती है while टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ओके. सो क्वेश्चन आपको टाइप 2 के एरर का भी आ सकता है, अगर आना होगा तो टाइप 1 के एरर का भी आ सकता है. सो यू शुड नो, when we reject a true null hypothesis, it result in type 1 error, and when we accept a false null hypothesis, it results in type 2 error, okay. Let's move on to next question now. Which of the following is a probability sampling technique? Okay, इनमें से probability sampling technique कौन सी है? Simple random sampling, convenience, purposive sampling या snowball sampling? अब थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में व्हाट वी यूज रैंडम सिलेक्शन, ओके. सो रैंडम सिलेक्शन यहाँ पे सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में है, ये यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है. सो दिस इज द आंसर, एंड ऑल दीज थ्री आर एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे हमें मैच करना है टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद देयर डिस्क्रिप्शन. सो ये हमारे पास चार तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, ओके. यहाँ पे इनके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं. सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शंस. पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स एंड रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच सब ग्रुप. अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो सबसे पहली बात तो इन ऑल द फोर्स, चाहे कुछ किसी भी तरीके से हम सिलेक्शन करें, अल्टीमेटली रैंडम सिलेक्शन तो होना ही है, दैट इज फॉर श्योर, ओके, क्योंकि दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ लेट्स सी. Population is divided into subgroups and random samples are drawn from each subgroup, okay. So population, एक ये बड़ी population थी, suppose इसमें मेल्स एंड फीमेल्स हैं. नाउ इन्होंने अलग से उसके सब ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, मेल अलग कर दिए, फीमेल्स अलग कर दिए, तो ये सब ग्रुप्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम स्ट्रेटा, ठीक है. स्ट्रेटा या सब ग्रुप एक ही बात है. अब ये सब ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से रैंडम सैंपल्स मेल्स में से पिक किए, रैंडम सैम्पलिंग फीमेल्स में से की, ठीक है. तो व्हाट इट इज, स्ट्रेटा कहाँ है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा से बना है. सो सब ग्रुप्स जहां बनते हैं, सब ग्रुप्स का मतलब स्ट्रेटा होता है. सो दिस इज stratified sampling A, okay. Then next है B is every member of the population has an equal chance of being selected. एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, कि हर एक इंसान का या हर एक मेंबर का जो है पॉपुलेशन में से सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है. सो इट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ओके. देन एवरी kth member is selected from a list of the population, ओके. सो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है, रेंडमाइजेशन किस तरीके से किया है कि हमने डिसाइड किया है कि ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सन वी आर गोइंग टू select. So every kth person is selecting, so this is systematic sampling, so this will be C. Then cluster sampling, entire group or clusters are randomly selected instead of individuals, okay.
सो यहाँ पे क्लस्टर्स का सिलेक्शन होता है, सो दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग डी। एंड क्लस्टर जो होते हैं हमारे, ये होते हैं ज्योग्राफिक एरिया में, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि क्लस्टर आ जाए या ज्योग्राफिक एरिया आ जाए तो यू हैव टू डू क्लस्टर सैम्पलिंग। Okay, so the answer will be A, B, A, C, D, B, A, C, D. Okay, so this is the correct answer. Okay, ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में यहाँ पे रेंडमाइजेशन कहाँ हो रहा है, पहले एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड रैंडमली, ओके, उसके बाद kth मेंबर जो है सेलेक्ट होता है पॉपुलेशन में से। सो दिस इज हाउ इट इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैच द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ये क्या क्या होते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। ओके, सो दीज आर ऑल examples of your non-probability sampling. Okay, participants are selected based on specific characteristics relevant to the research purpose. अब ये साफ दिख रहा है कि हमें specifically participants select करने हैं based on our research purpose. Okay, so this is purposive sampling. Okay, then sampling starts with a few participants who refer others useful for hidden or hard to reach populations. ये जैसे कि ये क्राइम वगैरह से रिलेटेड अगर लोगों का हमें रिसर्च करना है या इस टाइप से ही कोई रिसर्च करना है, तो ये ऐसे आपको इतनी इनकी पॉपुलेशन एज सच मिलेगी नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो हाउ विल यू रिसर्च ऑन देम। पहले एक किसी ऐसे ही इंसान को लेंगे, उससे बात करें, कहीं से वो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो देन हम उसी को बोलेंगे कि यू कनेक्ट अस विद सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन एज यू आर, ठीक है, तो वो हमें कनेक्ट कराएगा। तो इस तरीके से ये हम नेटवर्किंग की तरह से हम रिसर्च करेंगे यहाँ पे, एंड ये कहलाएगी स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। सो जहाँ पे रेफरल होता है, रेफरल के थ्रू हमें पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, थर्ड है पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बिकॉज दे आर इजिएस्ट टू रीच और रेडिली अवेलेबल, ठीक है, कन्वीनियंस के आधार पे हो रहा है, इजिएस्ट टू रीच, सो सी इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन है आपका पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एंड पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड टू मीट अ प्री डिटरमाइंड कोटा फॉर ईच कैटेगरी। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन को हमने जो है डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में, एंड देन पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड टू मीट अ प्री डिटरमाइंड कोटा। कोटा मतलब कि उतना अमाउंट, सपोज हम किसी मूवी थिएटर में, हम मूवी थिएटर के बाहर जा रहे हैं कोई मूवी का रिव्यू लेने के लिए, ठीक है, फीडबैक लेने के लिए, रिव्यू लेने के लिए, और हमने क्या डिसाइड किया कि हम 15 मेल्स का एंड 15 फीमेल्स का फीडबैक लेंगे, ठीक है। तो हमने ये कैटेगरी बना ली मेल्स की एंड फीमेल्स की। अब वहाँ से हम थिएटर के बाहर जाएंगे और वहाँ से जैसे जैसे मेल्स एंड फीमेल्स निकलते जाएंगे, जैसे जो भी हमें दिखा, फर्स्ट 15 मेल्स हमारे पूरे हो गए, 15 फीमेल्स हमारी पूरी होगी, हमारा कोटा पूरा हो गया, तो हमारी सैम्पलिंग वहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो दिस इज हाउ the quota sampling. Okay, so CABD first is the correct answer. Let's move on to another question now. Okay, reliability in research refers to what? The degree to which a tool measures what it is supposed to measure, the consistency and stability of the measurement over time, हाउ ईजी इट इज टू यूज अ टूल, या साइज ऑफ द सैंपल। सीधा सीधा मतलब बताया था मैंने क्लास में, कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है। सो एंड ओवर टाइम ऑफ कोर्स हम चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी है तो कंसिस्टेंसी को तो ओवर द टाइम ही पता चलेगा कंसिस्टेंसी है कि नहीं, है ना। सो बी इज द आंसर। एंड अगर हम जो मेजर कर रहे हैं, जो द डिग्री टू विच अ टूल मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, जो उसको मेजर करना है वो वही मेजर कर रहा है कि नहीं,
वो चीज क्या कहलाएगी आपकी वैलिडिटी। ओके, let's move on to other question now. Which type of reliability measures consistency over time using same form and same sample? ठीक है, सेम फॉर्म एंड सेम सैंपल से रिलायबिलिटी कौन सी इसमें से रिलायबिलिटी होती है जिसमें कि हम सेम फॉर्म एंड सेम सैंपल यूज करते हैं? टेस्ट री टेस्ट, इंटरेटर, इंटरनल या कंटेंट? ये सब हमने बहुत अच्छे से किया था क्लास में, सो द आंसर इज टेस्ट री टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इट मेजर्स, क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन? हाउ मच द डेटा पॉइंट्स डेविएट फ्रॉम द मीन। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। सो मीन से हमारा डेटा पॉइंट कितना डेविएट करता है वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, हमें ये मैच करने हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं ये, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन, अनोवा, ये इनके पर्पस या डिस्क्रिप्शन है। तो हमें मैच करना है कि टी टेस्ट हमारा क्या करता है, काई स्क्वायर क्या करता है एंड ऑल दैट। सो मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच की रिलेशनशिप को मेजर कर रहा है। तो क्या ये दो रिलेशनशिप को जो हम चेक करते तो क्या होता है, वो एक्चुअली कोरिलेशन चेक करते हैं ना। तो दिस विल बी कोरिलेशन, वेदर एक्स इज कोरिलेटेड टू विद वाई और नॉट। okay, so we are checking correlation here, so this is A. In correlation we measures the strength and direction of the relationship between two variables. Okay, then compare means of three or more groups, compare means of two groups, टू ग्रुप्स का मीन जब हम कंपेयर करते हैं तो इट इज डन थ्रू टी टेस्ट। ओके, तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स का मीन के मीन को अगर कंपेयर करते हैं तो इट इज डन थ्रू अनोवा। ओके, अब लास्ट बचता है टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अगर हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनकी रिलेशनशिप हमें चेक करनी है तो इट कैन बी डन थ्रू काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, सो सी डी ए बी, सी डी ए बी। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन हो गया या आपका प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ये मैंने इस तरीके से मैच वाले इसलिए इंटेंशनली बनाया है ताकि आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू इन सब का मतलब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको आई होप ये पता चल गया, टी टेस्ट में हम दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं, अनोवा में हम तीन या तीन से ज्यादा के मीन को कंपेयर करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट में हम कैटेगोरिकल वेरिएबल की रिलेशनशिप टेस्ट करते हैं, एंड कोरिलेशन में हम किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को चेक करते हैं। ओके, एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। सिर्फ इतना भी आ सकता है पेपर में कि चार ऑप्शन दे दिए एंड पूछ लिया विच वन ऑफ देम इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या विच वन ऑफ देम इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस तो आपको पता चली गई, साथ में ये भी पता चल गया कि ओके, कोटा, स्नोबॉल, पर्पसिव, कन्वीनियंस, ये सारी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हमने रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया है, यहाँ पे हमने कन्वीनियंस के आधार पे किया है, यहाँ पे हमारा पर्पस क्या था उसके आधार पे किया है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम चांसेस हैं पार्टिसिपेंट के, हमने एक के थ्रू दूसरे को पकड़ा फिर ऐसे, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है, यहाँ को कोई रैंडम चांस नहीं है बिल्कुल भी। कोटा सैम्पलिंग में भी कोई रैंडम नहीं है, हम जैसे हमारा कोटा फिल हो गया हमारी अपनी सैम्पलिंग फिनिश हो गई। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की थी उसमें क्या था, उसमें रैंडम सैम्पलिंग होनी जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रेटिफाइड में हमने सिंपल रैंडम में तो सिंपली इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड रैंडमाइजेशन। स्ट्रेटिफाइड में क्या, पहले स्ट्रेटा बनाए यानी कि ग्रुप बनाए फिर उनमें से सैम्पलिंग कर ली। सिस्टमेटिक में क्या, रैंडमली पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज किया उसके बाद सिस्टमेटिक फॉलो किया। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या, हमारे ये जो क्लस्टर्स हैं ये रैंडमली आते हैं, एंड क्लस्टर्स क्या होते हैं, ये ज्योग्राफिक क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिक वर्ड याद रखना, कई बार ये वर्ड यूज होता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम अब आ गए हैं इस क्वेश्चन पे, द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इज। ओके, अगर हमारे पास डेटा है सपोज 10 डिजिट्स, 10 वैल्यूज का डेटा सेट है हमारे पास, एंड वो ऑर्डर में अरेंज है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो मिड में वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, इज इट मीन, मीडियन, मोड या नन ऑफ द अबव।
सो इट इज मीडियन। ठीक है, ये ना भी याद रहे तो ट्रिक से याद रखना कि मिड वैल्यू है, मिड से मीडियन। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ठीक है, एंड मीन क्या होता है? मीन तो एवरेज होती है। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज, जिसमें हम सारी वैल्यूज को सम करते हैं एंड देन टोटल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दैट इज मीन। नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, टोटल से डिवाइड, सॉरी, नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल तो सम को ही बोलेंगे ना, नंबर ऑफ वैल्यूज से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सम को, सम आ गया, इसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन आ गया। एंड मोड क्या होता है? मोड होता है जो फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है हमारी डेटा सेट में। ठीक है, डेटा सेट में जितने भी नंबर हैं उनमें से अगर कोई कोई भी नंबर ऐसा जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट हो रहा है, दैट इज अवर मोड। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। ओके, देन नेक्स्ट, डीएसएम इज पब्लिश्ड बाय, डीएसएम किसने पब्लिश किया? डीएसएम पब्लिश किया गया है बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी आ सकता है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। डीएसएम अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि डिसऑर्डर्स के लिए, तो डिसऑर्डर का काम साइकेट्री का होता है, तो इन्होंने पब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद है 4 Ds यूज टू डिफाइन एबनॉर्मल बिहेवियर इंक्लूड। एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए 4 Ds होती हैं, तो वो 4 D कौन सी हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, तो जो 4 Ds होती हैं उसकी वो होती है डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस, डेवियंस एंड डेंजर। ठीक है, ये 4 Ds आपके एबनॉर्मल बिहेवियर को बताती हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इसको ऐसे ही पूछते हैं, दीज आर नोन एज द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, एक और एबनॉर्मल बिहेवियर को हम स्टैटिस्टिकली कैसे डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिकली हमारा जो कर्व होता है वो कैसा होता है? बेल शेप्ड कर्व होता है, राइट? तो इसमें जो एवरेज है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, ये जैसा बिहेव कर रहे हैं, ये जैसा इनका बिहेवियर है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। ठीक है, एंड जो एक्सट्रीम्स पे है, बोथ द एक्सट्रीम्स, ठीक है, चाहे ये इस साइड का एक्सट्रीम है या इस साइड का, दिस इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकली नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी, एंड ऑप्शन में आपको एक दूं, आईक्यू है किसी का 145, बी में ऑप्शन दूं आईक्यू किसी का आया है 55, सी में दूं नन ऑफ द अबव, एंड डी में दूं ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब बोथ ऑफ दीज। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दूं तो इसमें आंसर क्या होगा? एबनॉर्मेलिटी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि 55 है, ये बिलो है, तो ये एबनॉर्मल होगा। नो, एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारी स्टैटिस्टिकली, अगर व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी स्टैटिस्टिकली ये पूछे, ठीक है, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। वाई? क्योंकि स्टैटिस्टिकली ये भी एक्सट्रीम है एंड 145 भी एक्सट्रीम है। ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिर्फ जो हमारा एवरेज होता है ना, जो ये एवरेज ग्रुप होता है, जो मिडल रेंज होती है, दैट इज ओनली कंसिडर्ड एज नॉर्मल। बाकी जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी स्टैटिस्टिकली एंड ऐसे ऑप्शन दिए, तो आपको जो ज्यादा वाला है वो भी चूज करना है। ये नहीं सोचना कि भाई ये तो गॉड गिफ्टेड या ऐसे कुछ रेंज में आ जाएगा, तो दिस इज नॉट एबनॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज हाउ द आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, सो लेट्स jump to another question. Somatic symptom disorder is characterized by what? Physical symptom without medical cause, recurrent panic attacks, mood swings, hallucinations and delusions. सो सोमेटिक सिम्टम बेसिकली फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिनका कि कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता है। ठीक है, मतलब नहीं हुआ होता है, डायग्नोस करने से कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी पता नहीं चलती, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स उनको फील हो रहे होते हैं, तो दैट इज सोमेटिक सिम्टम। ठीक है,
मेडिकल कॉज नहीं निकल के आता। देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी क्या होता है? एमएससी हम कंडक्ट करते हैं जब भी हमारे पास कोई भी क्लिनिकल केस आता है ना, तो हम उसकी एमएससी कंडक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि पर्सन का कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग कैसी है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसका कैसा है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। Next, schizophrenia is primarily classified as which disorder? Mood, anxiety, psychotic या personality? तो schizophrenia जो है हमारा वो psychotic disorder आता है। Why? क्योंकि psychotic disorder में हमारा reality से नाता टूट जाता है, ठीक है। तो schizophrenia में भी यही होता है। Then which of the following is considered a positive symptom of schizophrenia? ठीक है, schizophrenia का इसमें positive symptom कौन सा है? Flat affect, hallucination, social withdrawal या lack of motivation? So the answer is hallucination. अब पॉजिटिव सिम्टम क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया में मतलब हमारे दो तरीके से सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव सिम्टम्स या नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में ऐड ऑन हुए होते हैं, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में कुछ कमी आ गई होती है, कि नेचुरली कोई बिहेवियर है उसमें कुछ कमी आ गई, कि जैसे हम सबसे हंस के बात करते थे, खुश से बात करते थे, लेकिन अब हमने बिल्कुल सबसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। या हम जैसे इमोशन शो करते थे पहले, है ना, और अब हमने इमोशन शो करना बंद कर दिया, यानी कि हमारा जो बिहेवियर था उस बिहेवियर से हम हमारा डेफिसिट हो गया, वो बिहेवियर कमी आ गई उस बिहेवियर में, तो वो आएगा नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। तो कुछ टाइप के बिहेवियर जिसमें कमी आ जाती है वो भी है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम माने जाते हैं, एंड वो आते हैं नेगेटिव सिम्टम की कैटेगरी में। पॉजिटिव सिम्पटम कौन से होंगे? पॉजिटिव सिम्पटम वो होंगे कि जो पहले बिहेवियर में बिल्कुल भी नहीं थी वो चीज, एंड वो अब ऐड ऑन हो गई है, एंड वो उसका सीधे सीधे स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्पटम है। कैसी हो गई वो पॉजिटिव चीजें सिम्टम्स? जैसे कि हेल्यूसिनेशन, ठीक है। हेल्यूसिनेशन इसका पॉजिटिव सिम्टम है, क्योंकि पहले हेल्यूसिनेशन नहीं था, ठीक है। हेल्यूसिनेशन क्या होता है कि स्टिमुलाई है भी नहीं तब भी कुछ परसीव हो रहा है, ठीक है, दैट इज हेल्यूसिनेशन। तो जब तक उसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ था पर्सन को, तब तक उसको हेल्यूसिनेशन नहीं थे, ठीक है। तो ये ऐड ऑन हुआ है उसकी पर्सनैलिटी में हेल्यूसिनेशन, सो दिस इज अ पॉजिटिव सिम्टम। ऐसे ही डिल्यूजन अगर है तो दैट इज अ पॉजिटिव सिम्टम। डिल्यूजन क्या है? फॉल्स बिलीफ होता है, ठीक है। एंड हेल्यूसिनेशन परसेप्शन होता है जब कोई स्टिमुलाई नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम में क्या आएगा? नेगेटिव सिम्टम में वही जो हमने बात की कि जो पहले अच्छी थी इंसान की और अब जो है वो खराब हो गई है, मतलब बहुत कमी आ गई उनमें, जैसे कि फ्लैट अफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका इमोशनल एक्सप्रेशन अफेक्ट क्या होता है? इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इमोशनल एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गया है, कि मतलब कुछ उसमें एक्सप्रेसिव कुछ रहा ही नहीं, तो दिस इज नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। सोशल विड्रॉल हमने बात की, सोशल विड्रॉल की, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन भी कम हो गया, सो दीज आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। एंड हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, ओके। आई होप ये समझ आया है आपको। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर डिजीजेस, इसमें मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर्स आर कोडेड अंडर विच चैप्टर? तो आईसीडी जो है आपका, ये बहुत सारी डिजीजेस के लिए है, एंड इसमें मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंडर आता है। वो चैप्टर कौन सा है? इट इज चैप्टर 5, ओके। चैप्टर 5 में एफ, इनकी जो कैटेगरी है F00 से F99 तक है, ठीक है। एंड ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, ठीक है। सो यू नो दिस, ओके। सो ये आपके मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं F00 से F99 तक इन आईसीडी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एंड आईसीडी किसने डेवलप किया था? WHO ने, ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा है? आईसीडी 11। देन कंफर्मिटी मीन्स, कंफर्मिटी क्या होती है? डिसोबिंग द अदर अथॉरिटी, चेंजिंग बिहेवियर टू मैच ग्रुप नॉर्म्स, रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट, ये एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। कंफर्मिटी होती है हम कंफर्म कर रहे हैं किसी ग्रुप के साथ, ठीक है। सो
चेंजिंग बिहेवियर टू मैच अ ग्रुप नॉर्म्स, हम ग्रुप के जैसा बनना चाह रहे हैं, ग्रुप के साथ हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो कंफर्मिटी आ जाती है, ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, the person who agree to a small request initially is more likely to later comply to a larger demand, ठीक है। this describe the, कौन सी टेक्निक है ये, डोर इन द फेस या फुट इन द डोर या लो बॉल टेक्निक या नन ऑफ दीज। सो जब हम ऐसी कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं कि पहले हम स्मॉल रिक्वेस्ट करते हैं इनिशियली किसी से, वो उस चीज को मान जाता है, तो देयर आर मोर चांसेस कि बाद में कल को लार्जर डिमांड कुछ करें तो वो उसको भी कंप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक, ओके। देन अब आपकी डोर इन द फेस टेक्निक क्या है। डोर इन द फेस टेक्निक में क्या होता है कि पहली बारी में जब हमें सपोज हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट मनवानी है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हम कुछ अनरीजनेबल सी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, ऐसी कि जिसको वो रिजेक्ट करे, ठीक है। देन अब उन्हें रिजेक्ट कर दी, तो उसके बाद हम सेकेंड टाइम पे जो एक्चुअल रिक्वेस्ट हमें मनवानी थी, हम वो प्रपोजल लेके जाएंगे। अब क्या होगा कि अब सामने वाले को थोड़ा गिल्ट आएगा उसे रिजेक्ट करने में, है ना, तो देयर विल बी मोर चांसेस फॉर दैट रिक्वेस्ट टू गेट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जो एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है वो हम सेकंड टाइम में करते हैं, फर्स्ट टाइम में कुछ हम इतनी अनरीजनेबल सी आउटरेजियस सी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि जिसका जो रिजेक्ट होती ही है, ठीक है, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट, ठीक। नेक्स्ट हम लेके जाते हैं अपनी एक्चुअल रिक्वेस्ट एंड देन इट इज लाइक एक्सेप्टेड, ठीक है। सो दैट इज योर फुट इन द डोर टेक्निक, सॉरी डोर इन द फेस टेक्निक, ठीक है। फुट इन द डोर टेक्निक तो वही है कि पहले स्मॉल रिक्वेस्ट किया, उसके बाद लार्जर डिमांड की, ठीक है। लो बॉल टेक्निक क्या होती है, लो बॉल टेक्निक में हम ये जनरली ये मार्केटिंग वगैरह में, वहाँ पे बिजनेस में यूज होती है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियली हम जो प्रपोजल देते हैं वो लो कॉस्ट बेस्ड होता है, ठीक है, कम उसकी प्राइस होती है जो इनिशियल प्रपोजल होता है, एंड बाद में क्यों देते हैं, ताकि हमें कमिटमेंट मिल जाए प्रपोजल का, एंड देन उसके बाद ऑन लेटर स्टेजेस वी इंक्रीज द प्राइस, द कॉस्ट, ठीक है। सो दैट इज लो बॉल टेक्निक, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।